Good afternoon to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Today we will study about logical operators and relational operators. Okay. Right now I am sharing my notepad. Then you will write. अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा कोई नहीं छोड़िए Relational operators. It is used to compare relational operators. It is used to compare two values. Excuse me, ma'am. Yes. मैम आप नोटपैड शो कर रही हैं? Yes. आ रहा है ना स्क्रीन पे? नो मैम. हम शेयर कर रहे हैं. आ रहा है अरे राइट जाके क्लिक आ करो, रहा है मैम. स्क्रीन को थोड़ा सा राइट करो, आ जाएगा वहां पर ऑप्शन रहता है. आज नेट स्लो है. Relational operators. It is used to compare two values. हेलो मैम Yes, I know. नेट स्लो हो रहा है किसी वजह से. मैम मेरे स्क्रीन पे प्रोग्राम फाइल्स ही खुले हुआ है. माई एसक्यूएल सर्वर. मेरे पे ब्लैक है. मैं मेरे स्क्रीन पे भी मैम यही वाला है, माई एसक्यूएल सर्वर. यस मैम माई स्क्यूएल ही दिखा रहा है. हाँ माई स्क्यूएल शो कर रहा है यस मैम माई स्क्यूएल सर्वर. मैम मैम अटक गई. मैम अब चुप है या बोल नहीं रही है मैम का वीडियो फ्रीज है. हाँ ओके जा यस मैम आ रहा है. Now, relational operators. It is used to compare two values and the result will be either true or false. In this relational, we have this much. Equal to, greater than equal to, less than equals to, and this symbol is new. Look here. Greater than and less than. Both written at one place is equal to, not equal to. ठीक है. कितने सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए? इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू. लुक हाउ इट इज रिटन इन MySQL. First you will give the sign of greater than and adjacent to it you will write equal to. Not like in maths. Okay. This is less than equals to, and this is not equal to. Okay. Now after relational operator we have to study about logical operators. Logical operators are three, or symbol is two parallel, vertical parallel lines, and two and notations, and not exclamation marks is used for not operator, and these are used for searching conditions. ठीक है. लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम लोग वेयर क्लॉज के साथ सर्च करने के लिए यूज करेंगे. जैसे अगर आपके पास क्वेरी हो कि display the details of those students who have secured 90% in 10 and are from Patna. Do you understand the query? Display the details of those students who have secured 90% in class 10th examination and are from Patna. This means there are two conditions. First condition is marks should be greater than 90%. And the second condition is student must be from city Patna. Then in this condition we will use AND operator, because in question there is written discuss
display the details of those students who have secured more than 90% and are from Patna. So in this condition, we will use logical operator. Now I will show you some examples in MySQL prompt. First we will see examples related to relational operators. Write down the query, question. Display the S name and F name of those students. Display the S name and F name of those students who have secured more than 90%. Who have secured more than 90%. What will you write here? Select. Yes. मैम आप पीडीएफ दे सकती हैं बुक का? मैम एस नेम किसका पीडीएफ बोलो? मैम बुक का? बुक का, हाँ बुक का भेज सकते हैं, बुक का हम भेज देंगे। वो सब भेज देना, दुकान बंद है, दुकान बंद है, भेज देंगे। ठीक, चलो ये देखो, सेलेक्ट एस नेम, क्वेरी क्लियर हुआ तुम लोगों को? Display S name and F name of those students who have secured more than 90%. Select S name, F name from student where percent is greater than 90. Clear? Select S name, F name from student where percent is greater than 90. ठीक है? अगर ये क्वेश्चन हो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, देन वी विल राइट लाइक दिस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90. ठीक है? क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। चलो कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड बनाते हैं, ठीक है? टू सी ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पेट टेबल, क्या लिखोगे? To see all the records from pet. Select asterisk from pet. pet table. Good. Pet. Yes. From Select from pet. ठीक है? आप क्वेरी लिखो, display the PID, display the PID, name and owner, name and owner of, display the PID, name and owner of all the cats and bird, of all the cats and bird. All the cats and bird मीन्स पेट टेबल में जितने भी कैट हैं और जितने भी बर्ड्स मेंशन हैं, उन सारे का पीआईडी, नेम एंड ओनर डिस्प्ले करना है. देन वी हैव टू राइट लाइक दिस, सेलेक्ट पीआईडी, नेम, ओनर फ्रॉम पेट where species equals to cat and species equals to bird. Select PID, name, owner from pet where species equals to cat and species equals to bird. Because in question we have written display the PID, name and owner from pet table of all the cat and bird species. Now, why it is not showing? Select PID, name, owner from pet where
species equals to cat and species equals to bird. I think we have to give this. Species. PID name owner from pet. Table name is pet here. Where species equals to cat. Okay. Now, can you figure out the error? Yes, ma'am. Yes, ma'am. because सुनो इस क्वेरी में एंड लिखे थे. एंड में क्या होता है ना कि एंड में तभी वो ट्रू होता है जब उनके दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हो, यानी स्पीसीज और स्पीसीज इक्वल्स टू बर्ड भी जब ट्रू होगा तभी ये आउटपुट आएगा. लेकिन अगर हम और लगाएंगे तो ये कैट और बर्ड दोनों के एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगे. एंड और का डिफरेंस समझ में आया? एंड कब यूज होगा? यस मैम. एंड का आउटपुट तब ट्रू होगा जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगे. और का आउटपुट दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आपका आउटपुट आएगा. अब अगर मान लो यहाँ पे देखो डेटा में कैट के साथ मेल है, कैट के साथ फीमेल है, ठीक है. अगर ये क्वेश्चन हो कि display the details of all the female cats. Write down the question. Display the details of all the female cats. All the female cats. इसका मतलब क्या हो गया? कैट भी हो और कंडीशन F भी हो. Then we can write like this. Select asterisk from pet where species equals to cat and sex equals to F. ठीक है, क्वेरी क्लियर हुआ? इस क्वेरी में क्या था? सारे फीमेल कैट्स का डिस्प्ले करना है, तो आपके पास कैट एंड सेक्स एफ दोनों ही ट्रू होने चाहिए. इस केस में देखिए आपके पास दो डिटेल्स हैं. यहाँ डेटा है आपका, देखो दिस कैट एंड एफ एंड दिस कैट एंड एफ बोथ आर डिस्प्लेड. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलो. मैम जो आप क्वेरी लिखी थी एंड स्पीसीज वाले में, तो उसमें शो नहीं कर रहा था. हाँ, इसमें शो नहीं कर रहा था, एम्प्टी सेट आ रहा था, शो नहीं कर रहा था. नहीं, ये क्वेरी सही लिखा हुआ था, लेकिन जब आप क्वेरी ऐसी करोगे कि जिसमें आउटपुट नहीं आ रहा हो आपके डेटा के अकॉर्डिंग, तो ये लिखता है एम्प्टी सेट. तो यहाँ देखो स्पेसीज में कैट भी है एंड स्पेसीज बर्ड है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा ना जो कैट भी होगा और बर्ड भी होगा. इसको ट्रू करने के लिए स्पेसीज इक्वल्स टू कैट भी ट्रू होना चाहिए और स्पेसीज इक्वल्स टू बर्ड भी, यानी दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होगा तब होगा. लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी एक जो भी आपका नेम है वो या तो कैट है या फिर बर्ड है. ठीक है, अगर हम फ्लफी नाम का बर्ड भी लिख देते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, हम दिखा देते हैं इसको कैसे करेंगे. देखो फ्लफी कैट है, हम फ्लफी नाम का एक बर्ड की एंट्री कर देते हैं, तब ये एक सेट आपके पास आएगा. Insert into pet values 114. फ्लफी नाम है ना.
नाउ अगेन उस क्वेरी को लिखते हैं। बर्ड बर्ड बर्ड, ये तो अभी आना चाहिए। अच्छा, इसको स्पेसीज कैट एंड स्पेसीज बर्ड, ये दोनों ही ट्रू मिलेगा तभी ये आएगा, नहीं तो ये हमेशा एम्प्टी सेट दिखाएगा। ठीक है, मैम मतलब ये नहीं दोनों ही समझी। कंडीशंस। इसमें क्या हो रहा है ना कि स्पेसीज एक ही कॉलम है, तो उसमें एक या तो कैट वाला ट्रू होगा या बर्ड वाला ट्रू होगा। समझ में आ रहा है ये इस क्वेरी का? स्पेसीज मैम। कैट है और बर्ड है। रुको मैम मतलब अगर हम लोग एक स्पीसीज का जो मैं वो कैट्स है, अगर दूसरा एक और कॉलम बनाते हैं स्पीसीज का, उसमें अरेंज करते हैं वो बर्ड आएगा, तब वो आ तब जाएगा, मैम शो करेगा। तब वो आएगा, लेकिन इस कंडीशन में ये नहीं आएगा। ये जब भी आएगा एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमको ये लिखा जाए, ये क्वेरी हो कि डिस्प्ले द नेम एंड ओनर ऑफ ऑल द पेट्स whose death is not null, तो कैसे लिखेंगे? whose death is not null, क्वेरी लिखिए, display the name and owner of all the pets whose death is null, whose death is null. Select name owner from pet where death is null. देखो, नल को कभी भी डेथ इक्वल्स टू नल नहीं लिखेंगे। नल की क्वेरी जब भी होती है तो हम लोग डेथ इक्वल्स टू नल नहीं लिखेंगे, डेथ इज नल लिखेंगे। ठीक है। अगर इसी में हम लिखते हैं इज नॉट नल, तो देखो एक ही का हम लोगों ने डेथ डाला था, इसलिए एक का ही लिखा। तो नल की क्वेरी जब भी होगी तो इज नल और इज नॉट नल विल बी यूज्ड। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर आता है आप लोग के बोर्ड्स में या फाइनल एग्जाम में कि क्वेरी दिया रहेगा सेलेक्ट नेम ओनर फ्रॉम पेट वेयर डेथ इज नल, और लिखा रहेगा, चलो हम ये दिखा देते हैं, इसमें देख लो तुम। क्वेश्चन ये आता है, करेक्ट द क्वेरी, करेक्ट द क्वेरी। ठीक है। क्वेरी क्वेश्चन ये रहेगा कि करेक्ट द क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट वेयर डेथ इक्वल्स टू नल। तो इसमें आपको लिखना होगा कि आंसर विल बी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट वेयर डेथ इज नल। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। Select asterisk from pet where death is null. Whenever we will search or we will do query regarding nulls, then we have to write where column name is null or is not null. Clear? null की query कैसे करेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। मैम अगर इस सर्वर वाले में अगर हम लोग डालते हैं नल, मैम डेथ इज इक्वल टू नल, तो मैम वो एरर शो करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हम लिख के दिखा दे रहे हैं। देखो, अगर हम इक्वल टू डाल दिए, एम्प्टी सेट दिखा रहा है। बेसिकली ये डेथ इक्वल्स टू नल में क्या कर रहा है कि ये डेथ को नल वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा है। एम्प्टी सेट दिखा रहा है, बट ये एरर है और ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसीलिए एम्प्टी सेट दिखा रहा है। और अगर यही सेम क्वेरी को तुम इज नल कर लोगे तो ये तुरंत दिखा देगा। ठीक है।
नल को कभी भी इक्वल टू साइन के साथ यूज नहीं करना है, इज नल और इज नॉट नल, ठीक है, ये नल के साथ एकदम याद रखना है। नाउ अगर ये क्वेरी हो कि हमारे पास स्टूडेंट्स के हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये भी एक टेबल था, यस ये है एक और है मार्क्स, मार्क्स। अगर ये क्वेरी हो कि डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड more than 450 and less than 490, display the name of those students who have secured between 450 and 490, तब हम लोग लिखेंगे select name from marks where marks between 450 and 490, ठीक है। Select name from marks where marks between 450 and 490, देखिए दो बच्चों का है, ठीक है, तो between कब हम यूज करेंगे, when we have given a range in the query, ठीक है, between operator is used when we have given a range in the query। यहाँ रेंज मेरा क्या है 450 to 490। अच्छा, इसी क्वेरी को हम लोग किसी और तरीके से लिख सकते हैं, मैम ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का यूज कर सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये भी एक क्वेश्चन का पैटर्न आता है कि आपको 3-4 क्वेरीज लिखी रहेंगी और उसमें कहा जाएगा कि मेंशन द 2 क्वेरीज व्हिच विल गिव द सेम आउटपुट, ठीक है। मान लो आपको 4 क्वेरी दे दिया जाएगा और क्वेश्चन रहेगा मेंशन एनी 2 क्वेरीज व्हिच विल गिव द सेम आउटपुट, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, select name from marks where marks between this and this, or select name from marks where marks is greater than equal to 450 and marks less than equal to 490। ये दोनों ही क्वेरीज सेम है और इनका आउटपुट सेम है। देखो यहाँ पे लिखते कैसे हैं, आप यहाँ पे दोनों जगह मार्क्स लिखोगे, कॉलम नेम मस्ट बी मेंशन ट्वाइस, और उसके बीच में एंड भी आपको लिखना होगा, क्लियर है। तब हम लोग बिटवीन यूज करते हैं, यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर ये क्वेरी हो कि डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड लेस देन 450, क्वेरी बताइए मैम सिलेक्ट नेम फ्रॉम मार्क्स where marks is smaller than 450। 400। very good, very good। Select name from marks where marks is less than 450। ठीक है, 450 350 जो भी है आपका, आप इस पे डाल सकते हो, इवन 400, ठीक है। एक बच्चा है उसका मार्क्स है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे यूज होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड और कब यूज करेंगे, समझ में आया, एंड और कब यूज करना है, और हम लोग जब भी यूज करेंगे कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एंड के लिए दोनों ही कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। यहाँ देखो 450 और 490 इनके बीच में जो मार्क्स लाई करेगा वही डिस्प्ले, ठीक है। एक और ऑपरेटर है आपका, दैट इज इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर in operator, it is used
specify a list of values. A list of values. जैसे अगर दो कंडीशंस थे, हमारे पास दो कंडीशंस थे, तो हमने और एंड को यूज कर लिया। लेकिन अगर 3 या 4 कंडीशंस हो तो क्या करें? ठीक है, अगर 3 और 4 कंडीशंस हो, उस केस में हम लोग इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पटना दानापुर है, अगर इसमें और भी 3-4 प्लेसेस होते तो हम लोग क्वेरी कैसे लिखते? क्वेरी लिखो, डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, display the name of students who come from Danapur, Khagol, Kankarabagh and Patel Nagar. Display the name of students who come from Danapur, Kankarabagh, Khagol, Patna. यहाँ 4 प्लेसेस के नाम मेंशन्ड है, तो हम लोग सब में और नहीं करेंगे, सीधे इन ऑपरेटर लिखेंगे। Select name from student